फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शाश्वती और आप देख रहे हैं क्लासरूम मेनिया। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नोइंग आवर नंबर्स। इफ यू हैवंट गॉन थ्रू द फर्स्ट पार्ट, I will give the link in the description box. Go and check that out. So today we will study about the order of number and expansion of number. Moving on to the first topic, order of number. Order are of two types, ascending order and descending order. Let's write it. First one is ascending order. Second is descending order. So इसका मतलब क्या है? ascending order, descending order मतलब क्या है? ascending order मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, increasing from smallest to the greatest. That's why ascending order is also known as increasing order. उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर इज ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ घटना. ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो डिक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई डिसेंडिंग ऑर्डर इज ऑल्सो नॉन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर. This is increasing and this is decreasing. Suppose we are given some numbers and told to arrange that in increasing or decreasing order. Then what will we do? How will we do? Let's see that. So we will take some examples here. So suppose I write 123, 99, 1, 428, 0, 2. Suppose I have written some numbers here. Now I have to arrange this in increasing order or ascending order. मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है. तो पहले क्या करना है? पहले हमें कंपेयर करना है. We have to compare these numbers and find the smallest one. So 123, 99, 1, 428, 0, 2. इन सब में से छोटा कौन है? 0. So we will write 0. Then we will again compare 123, 99, 1, 428, 2. Which is the smallest? 1. So we will write 1. But in between 0 and 1, we will put a symbol that is smaller than. 0 is smaller than 1. Again we will put the symbol here. And we will find the next smallest 123, 99, 428, 2. 2. So we will write that. Again put the symbol. Find 123, 99, 428. 99. Because it's a 2 digit and rest both are 3 digits. Then 123, 428. 1, 4. 1 is smaller, obviously. Then 123 at last, 428. So 0 is the smallest one and 428 is the greatest. छोटे से बड़े के तरफ बढ़ रहा है. It is increasing. So that's why it is called increasing order. Suppose अब हमको यही चीज डिक्रीज करनी हो, यानी कि arrange this in descending order or decreasing order, then what will we do? We will again compare the numbers 123, 99, 1, 428, 0, 2. Which is the greatest among them? Obviously 428. Then we will leave this 428 and compare the others.
123, 99, 102. 123. So we will write 123. Here also we are going to use a symbol that is greater than. 428 is greater than 123. There we used in ascending order smaller than. Here we are using greater than. So after that again we will compare 99, 102. Which is greatest? 99. So we will write 99. After that we will compare 102. Which is the greatest? 2. Again compare 1, 0, 1. At last 0. So this is decreasing. बड़े से छोटे की तरफ घट रहा है. This is decreasing. In this way, we can arrange the numbers in two orders. Ascending order, that is छोटे से बड़ा, increasing order, and descending order, बड़े से छोटा, that is decreasing order. Moving on to the second topic, that is expansion of number. So how we expand a number? For expansion, let's take some example and understand it. Suppose I take 928. So how to expand this? क्या करना है? पहले तो हम लिख लेते हैं एक अलग जगह पे इसको. 928 चलो हमने लिख लिया. क्या करें फिर? कुछ नहीं करना है, बस नंबर के बाद 00 लगाने हैं. कैसे लगाने हैं चलो देखते हैं. तो हमको इसका पहला डिजिट पहले देख लेना है. क्या है? 9 है. 9 लिख लिया. उसके बाद कितना डिजिट है? 1, 2. उतना ही 0 डालो. 1, 2 हो गया. फिर उसके बाद कौन सा डिजिट आता है? 2. 2 लिख लिया. 2 के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट लिख लो. फिर उसके बाद क्या आता है? 8 लिख लिया. 8. उसके बाद कोई डिजिट आता है क्या? नहीं आता, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं. क्या हो गया? 900 प्लस 20 प्लस 8. ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, जो एक्सपेंशन हम करते हैं उसका वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए कि एट द एंड हमको यही वाला नंबर मिले. कैसे? अब हम इसको देखते हैं ऐड करके कि इतना ही आता है या नहीं. तो 900 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 8 डाल दिया. चलो प्लस करते हैं. 8 प्लस 0 कितना हुआ? 8. 2 प्लस 0 2. 9 प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं तो 9 आ गया ना हमारा उतना ही वैल्यू. तो ये है एक्सपेंशन. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और इस बार एक बड़ा नंबर लेते हैं. लेट्स टेक 24928. सपोज हमने ये नंबर लिया. तो क्या करना है? वैसे ही पहले 8 वाला डिजिट लिखना है, उसके बाद कितना डिजिट है काउंट करना है, उतना ही 0 डालना है. चलो करते हैं. 2 1 2 3 4 1 2 3 4. फिर प्लस सिंबल. 4 लिख लेंगे. कितना 0 डालेंगे? 1 2 3 1 2 3. फिर 9 लिखेंगे. उसके बाद कितना डिजिट है? 1 2 1 2. फिर 2 लिखेंगे. उसके बाद एक ही डिजिट है. फिर 8 लिखेंगे. उसके बाद कुछ नहीं है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल. इसमें भी हमको 0 ही डालना है. बस ये 2 को अलग लिखना है और इस ज़ीरोज़ को अलग कर देना है. वो कैसे करेंगे? अगर हमने सपोज़ इसको अलग कर दिया, सपोज़ हमने यहाँ पे 2 प्लस 0 लिख दिया तो वापस 2 ही हो गया. 2 प्लस 0 0 भी लिखेंगे तो भी 2 ही हो जाएगा. तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे प्लस की जगह पे इंटू का सिंबल यूज़ करेंगे. पर इंटू के बाद भी अगर हम 0 लगाएंगे तो 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया. फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम इंटू के बाद 1 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया ना 20,000 हमारा. बस उसी तरह बाकी भी कर लेंगे. 4 इंटू 1 1 2 3 1 2 3
फिर उसी तरह 9 इंटू 1 डाल देंगे, 1 2 1 2, फिर 2 इंटू 1 फिर डाल देंगे 1, फिर यहाँ पे 8 इंटू 1 कुछ नहीं है, छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सपेंशन। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, वो है कि हम जो क्या होता है ना, एक नंबर के बाद कितना ज़ीरोज़ होता है ये याद नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमको कोई पूछे 1 लाख में 1 लाख में कितना ज़ीरो है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 लाख में कितना ज़ीरो है, तो काउंट करने में बैठ जाते हैं कि कितना ज़ीरो होता है। वैसे ही 10 करोड़ या फिर कोई 1 करोड़ के बारे में पूछे तो हम डाउट में आ जाते हैं। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो वो ट्रिक क्या है, 10 में 1 ज़ीरो है, 100 में 2 ज़ीरोज़, उसके बाद 1000 में 3 ज़ीरोज़, उसी तरह लाख में 5 ज़ीरोज़, उसी तरह करोड़ में 7 ज़ीरोज़। तो ये टेबल जो है इसको हमेशा याद रखना है। ये टेबल अगर याद रख लिया तो कोई भी कभी भी कोई भी नंबर लिखने के लिए बोलेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे, सपोज एक एग्जांपल ले लेंगे, हमको किसी ने लिखने के लिए बोला 46,000, 1000 में हमको पता है कितना ज़ीरो होना चाहिए, 3 ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, 46 हो गया, 1000 बोला है मतलब 1 2 3 हो गया हमारा 46,000। उसी तरह कोई हमको बोले 46 लाख लिखो, तो 46 हो गया, लाख में कितना ज़ीरो होता है, 5 ज़ीरो, डाल देंगे 1 2 3 4 5, हो गया हमारा 46 लाख। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव टू राइट 39 करोड़, 39 लिख दिया, करोड़ में कितना ज़ीरो होता है, 7 ज़ीरो, डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हो गया हमारा 39 करोड़। तो ये एक सिंपल ट्रिक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं।